یہ ایک اہم دورہ ہونا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہم دورہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر دورہ اہم ہی ہوتا ہے۔ پاکستان صحیح، سے جو دورہ ہوتا ہے وہ بڑا کامیاب بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ایم او یوز بھی سائن کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ کہیں ہوا میں ایک لحاظ سے وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، ایپوریٹ ہو جاتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ نہیں ہو پاتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے کونسل، اس کا اجلاس تھا اور ون ونڈو آپریشن کی بات ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ ایک کون سی کھڑکی ہے جس کی ہم تلاش پچھلی کئی دہائیوں سے کر رہے بالکل، ہیں، اور ابھی تک ہمیں وہ ایک کھڑکی نہیں مل پا رہی جس کے تحت ہم فورن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو پاکستان میں لے کر آئیں۔ چلیے، یہ تو اب لیکن مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے 5 روزہ، اس کے حوالے سے پاکستان نے کافی تیاری کی ہے۔ صحیح، آپ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہمارے جو پلاننگ کے منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب، وہ تشریف لے کر گئے تھے چائنا۔ اس کے بعد ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی چائنا گئے تھے۔ اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی میٹنگز بھی پاکستان میں ہو رہی ہیں کہ جو چائنا اور سی پیک کے کانٹیکس میں جو بھی پروجیکٹس ہیں ان پہ فوکس کیا جائے، اور ان کو اب جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا اس کو سامنے رکھ کر بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیے، منتہا 3 4 چیزیں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں اس سارے معاملے میں۔ ایک تو جو گلوبل سینیریو ہے اس وقت جو بن رہا ہے، وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ پھر جو بالکل، ریجنل سچویشن ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ جو پھر پاکستان اور چین کے درمیان جو بائی لیٹرل ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور پھر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، یہ 4 ڈائمنشنز ہیں سی پیک کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھ لیجئے۔ صحیح، کیونکہ گوادر کو اگر آپ لیجئے تو مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا اور ہم خود چین کے پاس گئے۔ یہ نہیں کہ چین ہمارے پاس آیا تھا، بالکل، ہم خود چین کے پاس گئے۔ ہم نے کہا کہ جی ہم گوادر پورٹ کو، ڈیپ پورٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ ہماری مدد کیجیے۔ تو چین نے ہماری نیگوشیشنز کی۔ ہمیں یاد آتا ہے ریاض کھوکر صاحب ہمارے وہاں پہ سفیر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ جی چین، ہم خود چین کے پاس گئے اور اب ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی بڑا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے خود نے نیگوشیٹ کیا تھا۔ تو چلیے صحیح، یہ تو باقی کی باتیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی 2012 میں ان کے پاس قیادت آئی چین کی، تو 2013 میں انہوں نے بیلٹ روڈ انیشیٹو سوچا، اس کا اعلان کیا، اور سی پیک اسی بیلٹ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ صحیح، اب پہلا فیز تو چلیے کسی حد تک مکمل ہو گیا، گوادر پورٹ بھی مکمل ہو گئی، اور ایک کوریڈور بننا تھا وہ بھی بن گیا، لیکن اب دوسرے کوریڈورز بھی بننے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو صحیح، اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس پہ بھی بات ہونی ہے۔ اب اسپیشل اکنامک زون میں آپ رکشائی کا لے لیجئے یا دوسرے بھی ہیں، ایک دو تین جو ہے، بابر جی شاید اسپیشل اکنامک زون ہے، اسی طرح جو ہے 2 3 مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ایک دو اور بھی اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ان پہ بھی صحیح، کام ہونا ہے۔ اور یہ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ ہم کوئی صحیح چیز بھارت چین کے سامنے لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ہمارا ایک ہے کہ ہم ایگریکلچر میں اپنے جو ہماری زراعت ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں، کیونکہ جب ہماری زراعت ابھی بھی پرانے زمانوں کی ٹیکنیکس استعمال کر رہی ہیں، ہم پانی بے بہا خرچ کرتے ہیں اپنے ایگریکلچر پہ، اپنی زراعت پہ، اور پانی جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ بہت اسکیئرس کموڈٹی ہو گئی ہے۔ تو بالکل، ایگریکلچر کو بھی ہم نے ماڈرنائز کرنا ہے، اور جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کو متعارف کروانا ہے، تاکہ ہماری ایگریکلچر میں زمین کم استعمال ہو، پانی کم استعمال ہو، لیکن جو ایگریکلچر زراعت جو پروڈیوس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، پر ایکڑ yield جسے کہتے ہیں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسی طرح ایگریکلچر کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ یہ ہے کہ جو ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ ابھی دیکھیے نا، ہمارا پاکستان میں ہم چوتھا یا پانچواں بڑا ملک ہے دودھ پروڈیوس بالکل، کرتا، لیکن ہم نہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں، نہ کوئی اپنے ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا کوسٹل لائن دیکھ لیجئے، بہت ہمارے وی آر فل آف مرین، اللہ تعالیٰ ہیز بلیسڈ اس،
हम इतने मरीन रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी फिशरीज की अगर एक्सपोर्ट्स देखें तो ना होने के बराबर हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे हमने फोकस करना है, और देखना ये है कि हम अब सी पैक को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट जो बड़े अरसे से रुका हुआ है, जो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है, जिसके जो रेलवेज हमने एक लाइन बनानी है, $6 अरब का तकरीबन प्रोजेक्ट है, लेकिन वो भी कहीं नहीं चल रहा। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि हमारे अंदर जो हम एक लूज कैनन्स हैं, हम सही। जो जुबान में आती है बात हम कह देते हैं, और इसी क्योंकि हमारे यहाँ एक दो आप यूं कह लीजिए कि दो थॉट्स हैं। एक का ख्याल ये है कि जी हमें चाइना के साथ बिल्कुल नथी नहीं होना चाहिए, हमें वेस्टर्न दुनिया के साथ भी ताल्लुकात को ठीक रखना चाहिए, तो हमें थोड़ा बहुत चाइना से पीछे हो जाना चाहिए। सही। ये एक थिंकिंग है पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ। और इसीलिए हमने देखा कि बहुत से लोगों ने माजी में, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सी पैक के बारे में खदशात का इजहार किया। लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत थोड़े तो हैं, लेकिन इन्फ्लुएंशियल बहुत हैं। और इनका ये जब बात करते हैं तो फिर चाइना के भी कान खड़े हो जाते हैं कि कैसे लोग हैं, हमें कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। लेकिन जो एक ज़्यादातर जो हमारी थिंकिंग है बड़े आम सतह पे, वो यही कहती है कि जी चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होने चाहिए, सही। अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते। इसी वजह से जो हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसको हमें ज़्यादा मुस्तहकम करना है। और ग्लोबल सही। कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखिए तो अमेरिका हमेशा से सी पैक की मुखालिफत करता रहा है, बल्कि अमेरिका और भारत के इस हवाले से जो है मफादात कन्वर्ज करते हैं कि सी पैक नहीं होना चाहिए, हमें चाइना के साथ ताल्लुकात को ज़रा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है और जो वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सी पैक का इन्हिसार कोई माने ना माने बलूचिस्तान में इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, या चाइनीज़ को टारगेट करेंगे, जिस तरह मार्च के महीने में 5 इंजीनियर्स को मारा गया था खैबर पख्तूनख्वा में, और उससे पहले भी कई हमले हुए हैं चीनी माहिरीन पर पाकिस्तान में। तो उससे ऑब्वियसली चीन कंफर्टेबल फील नहीं करता कि वो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे लेकर चले। तो एक तो ये है कि हमें भारत और अमेरिका के जो डिज़ाइंस हैं उनके बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बायलैटरली देखिए तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं। ये तो देखिए ना, सी पैक अभी आया है, लेकिन बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप देखिए पाकिस्तान भारत के चीन के ताल्लुकात, तो ये बड़ी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, चाहे हमारे सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे हमारे डिफेंस के मामलात हों, हमारे इकनॉमिक मामलात हों। अभी भी चीन हमें हमेशा हमारी मदद के लिए खड़ा होता है, हमें बहुत से मामलात में दुनिया भर में सपोर्ट भी करता है। इसी तरह हम भी सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर वन चाइना पॉलिसी है, हम पाकिस्तान उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से विगरसली हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक दो म्यूचुअल हमारा म्यूचुअली बेनिफिट का रिलेशनशिप है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, और पाकिस्तान को इस सिलसिले में अपने बिल्कुल जहन में क्लैरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे, 5 रोज़ा दौरा है, और ऑब्वियसली सारी निगाहें लगी हुई हैं कि जब मुश्तरका एलामिया इशू होगा तो उसमें किन किन चीज़ों का जिक्र होगा। सही। ऑब्वियसली जब इस किस्म के एलामिया इशू होते हैं, आप जानती हैं कि दोनों साइड्स इस बात का इरादा करेंगे कि जी हम सी पैक को अब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे परसू करने जा रहे हैं। लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है कि आया पाकिस्तान में इस किस्म के हालात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि जो भी चीनी माहिरीन यहाँ पे काम कर रहे हैं, चीनी शहरी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी हासिल होनी चाहिए। हमने माजी में एक ख़ास ब्रिगेड इसके लिए बनाया, पूरा कुछ सिक्योरिटी के फोर्सेस हमने सिर्फ इसीलिए एक फौज इख्तियार की कि वो चीनियों की सिक्योरिटी के लिए हमने उसको। बिल्कुल। तो क्या अब ये हम इसको सही मानों में इम्प्लीमेंट भी इन चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर दूसरा अगर आप जाइए तो दूसरा जो वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसमें
ताकाशाही है, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है, बोस्तान स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, फिर सही। भाबजी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमने सोचना है और उस पे चीनियों को एक लिहाज से राज़ी करना है कि अब सही। वो जो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, नहीं, अमेरिका को मनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। गो कि मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि जब भी हमारी अमेरिका से गुफ्त-व-शुनीद होती है, तो सी पैक के बारे में, चाइना के बारे में अपने ख़दशात का इज़हार करते हैं। वो ये कहते सही। रहते हैं कि चाइना आपको कर्ज़ों में फंसा रहा है और आपको इन कर्ज़ों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस किस्म का वो एक प्रोपेगेंडा तो करते रहते हैं। ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, अगर आप दूसरे ममालिक को भी देखिए, चाहे वो श्रीलंका हो, द मालदीव्स हो, अफ्रीका में कोई देख लीजिए, तो उनका ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है यूरोप, वेस्टर्न दुनिया का, कि चीन के साथ जिसने भी ताल्लुकात को बढ़ाया है तो फाइनली इवेंचुअली वो कर्ज़ों की जो जो कर्ज़ों का बोझ है उसमें दब कर रह गया है। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है। चीन के साथ अगर हम कोई कर्ज़े लेते भी हैं, वो एक सॉफ्ट लोन्स होते हैं, ग्रांट्स नहीं सही। होती, बाज़ औक़ात ग्रांट्स ही मिल जाती हैं, लेकिन सॉफ्ट लोन्स होते हैं। हमारे इस वक़्त अगर आप कर्ज़ों का देखिए, ठीक है, इस वक़्त जो मजमूई कर्ज़े हैं हमारे एक्सटर्नल, उसमें 30% 30 से 35% चाइनीज़ कर्ज़े हैं, लेकिन बाकी कर्ज़े तो दुनिया दूसरे ममालिक के हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि हम में अपनी इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम सही मानों में जो कर्ज़े भी हैं उनको सही तरीके से नेगोशिएट कर सकें। जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ भी रही है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में, उसको हम सही तौर पे नेगोशिएट कर सकें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे यही है कि पहले तो एक जो वन विंडो की मैंने बात की, वो एक विंडो अभी तक नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स हैं और इतने रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें सही पता नहीं चलता कि क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए आप देखिए ना, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आना था, बिल्कुल। वो इसी वजह से नहीं आए कि पाकिस्तान में क्लैरिटी नहीं है कि हम किन मंसूबों में सऊदी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। तो चीन के मामले में हमें कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। ये ज़रूर है कि हमें अपने जो मफादात हैं उनका इदराक होना चाहिए और हम अपने मफादात को भरपूर तरीके से प्रोटेक्ट भी करें। बिल्कुल। लेकिन एक बुनियादी फ़ैसला हमें कर लेना चाहिए कि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो स्ट्रैटेजिक नोयत के हैं। सी पैक हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो 60-65 बिलियन डॉलर की बात नहीं है। ये आगे सही। भी जा सकता है और उसको पाकिस्तान से मुस्तकिल फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि चीन ने जो डेवलपमेंट का जो स्टेज है चीन का, वो उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ आप उन्हें कह रहे हैं, उनको बाहर कहीं और दुनिया में शिफ्ट करना है। और सही। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सारी जो इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे आए ताकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हमें चाहिए ताकि एक्सपोर्ट बेस, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उनको ठीक करें और अपने जो हमारा सोशल सेक्टर है हमारा, उस पे हम इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बड़े क्लियर होंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये एक लोग इसके बारे में सवालात उठा रहे हैं कि जी आपके पास पहले भी इतने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, तो क्या ज़रूरत थी एक और ब्यूरोक्रेसी, एक और तर्ज का इंस्टीट्यूशन बनाना। और कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तक उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। लेकिन चलिए, क्योंकि हमारे पास पहले भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मौजूद था और भी बड़े इदारे मौजूद थे जो कि इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे थे। लेकिन चलिए, अगर हुकूमत ने केयर टेकर सेटअप ने एक फ़ैसला कर लिया था और इसके बाद इस हुकूमत ने भी उसको अपनाया है और उसको उसके साथ मिलकर काम करने की भी सोचा है, तो ठीक है। अगर ये एक फोकल पॉइंट हमें मिल गया है तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ़ मीटिंग्स ही के लिए है और सिर्फ़ स्टेटमेंट्स के लिए, फिर तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सही। ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है, जो हमारे यहाँ एक लिहाज से लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। कभी अमेरिका की जानिब से प्रेशर आ जाता है, कभी कहीं से प्रेशर आ जाता है, तो हम डगमगा से जाते हैं। हमें क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही है। सच्ची बात यही है कि हमारे एशिया में अगर आप देखिए तो चाइना बड़ा बड़ा क्लियरली आगे बढ़ रहा है।
نہ صرف وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، سی پیک پہ کام کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔